इंडिया में तो अर्बन प्लानिंग हो भी नहीं सकती यार. मतलब you can't do this. Oh, why can't you do this? Sense. We're not skilled people. We just want jobs like that. तो वहाँ पे कभी भी अर्बन प्लानिंग नहीं हो सकता है. एक कॉन्ट्रैक्टर के पास 100 लोग हैं एग्जाम्पल. वो 100 लोग इस साल काम कर रहे हैं ना. सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है तो दैट्स व्हाई विल ऑलवेज बी अ डेवलप्ड कंट्री. वो जो रोड है हमारे पीछे वाली वो हर साल फरवरी में ही रिपेयर क्यों होती है? सूरजकुंड मेले से पहले. मेला के लिए, हाँ. सब कॉमन सेंस का काम है. यू लर्न इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. No, it's not. That's why you don't hire educated people in events. So this guy worked for 10-12 days and he said कि I'm leaving. Reason? कहता जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना I'm not able to give time to my girlfriend. This podcast is with Harinder Rana. He's the owner, founder of Fervent Group, always been into events and experience, and also a very deep thinker, observant. He is known for the quality of building people, has a great credibility in this dynamic industry. So I hope you enjoy this very meaningful conversation with Harinder. You've been a business person always, or you've been an entrepreneur? Entrepreneur. And क्या difference है? Businessman अपने लिए कमाता है. He's very categoric. Have you ever seen businessman working for 15-17 hours a day? I don't now. Sometimes I now, but not usually. It's a story of the past. But अगर businessman हो तो you will first think about profits. You'll first think about you yourself. And then anything later. अगर businessman हो तो दिवाली वाले दिन दुकान खुलेगी. धंधा होना चाहिए. धंधा होना चाहिए. When you're entrepreneur, you think कि दिवाली पूजा तो I have to do on छोटी दिवाली पे या धनतेरस पे या उससे एक दिन पहले. You're an entrepreneur, you have to think about बोनस से किसका पेट भरता है स्टेट में. Though we don't give bonuses, but yes, gifts, clients, everything. Businessman हो तो तुम्हारा मिठाई के डब्बे से काम हो जाएगा. Entrepreneur हो तो you have to give them gifts. ठीक है. Experience matters. An entrepreneur works for people यार. Entrepreneur is an artist. So entrepreneur is nothing less than an artist. ठीक है. Businessman, no sales tactics. Right. You go, every दुकान वाला is a businessman. Every ठेले वाला is not a bad thing to open a ठेला, but every ठेला वाला is a businessman. They know how to sell. हाँ, बिल्कुल. A selling guy who's doing his own thing is a businessman. Okay. A person, entrepreneur, is someone who's working for others and then for himself. ठीक है. And then finding out how do I pay salaries at the end of the month. Is an entrepreneur. Entrepreneur creates value. Businessman creates money. Entrepreneur gets more value of more money after 10, 15, 20 years. Businessman is making standard money every year. Businessman works for themselves. उसे पड़ी नहीं है नीचे लोगों के. Entrepreneur works for everyone else. Entrepreneur is an artist. Businessman is pure बनिया धंधा. तो कॉन्ट्रैक्टर बिजनेसमैन हुआ. कॉन्ट्रैक्टर बिजनेसमैन हुआ है ना. ये चीज एंटरप्रेन्योर को दे दोगे तो देख लेना वो ऐसा सोल्यूशन निकालेगा कि 15 साल तक रोड नहीं बनेगी. अदरवाइज व्हेन यू एम विद अ विजन कि रोड बनानी है तो सबसे पहले ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बना था. हैव यू बीन देयर? या ठीक है. आई एम श्योर जो गया होगा ना उसने स्पीड लिमिट्स क्रॉस की है. मैंने बहुत बार की है. हाँ, पता ही नहीं चलता है. ठीक है. बट अगर उसमें कहीं पे कुछ उस पे प्लेन लैंड्स होते हैं हमारे प्लेन वो एयरक्राफ्ट्स वो फाइटर प्लेन लैंड हुए हैं. You know, if you are with that mindset, वो रोड वो बना ही उस माइंडसेट से कि इससे पैसा कमाना है 20 साल. इसको तोड़ेंगे और इसको रोज मरम्मत लगाएंगे ना. कॉज इस वॉल में अगर एक होल हो जाए उसको ठीक करने के लिए आधी वॉल तोड़नी पड़ेगी. तो वही सेम उधर है. अगर उसमें एक पॉट होल आ गया उसे ठीक करने के लिए आधा रोड तोड़ना पड़ेगा. सीधा अमाउंट ऑफ लॉसेस की वो रोड नहीं चलेगी. रोड बंद रहेगी और वट एवर कार्स विल कम एक्सीडेंट्स एवरीथिंग. दैट माइंडसेट वो कंपनी ने बनाया. एंड ये पीछे वाले रोड मेहरौली फरीदाबाद रोड पे क्यों नहीं इकट्ठे होते? बस 10 साल हो गए मेरे को भी इस पे ट्रैवल करते. 10 साल से ज्यादा हो गए. सही, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलती है. फर्स्ट क्लास चलती है. बीच में कभी एक आधा हो गया छोटा मोटा. इज ऑल पार्ट एंड पार्सल. तो क्या वहां पे करप्शन नहीं है? उसको जो मैनेज कर रहे हैं वो लोग वो प्राइवेट एंटिटी ने बनाया ना. बिकॉज दे वांट टू अर्न फ्रॉम दिस फॉर नेक्स्ट 15-20 इयर्स. इंडिया में तो अर्बन प्लानिंग हो भी नहीं सकती यार. मतलब यू कांट डू दिस. मतलब व्हाई कांट यू डू दिस? जिस कंट्री में हम लोग कहते हैं बेरोजगारी है और उस कंट्री में ट्यूसडे और वेडनेसडे के टाइम्स एसेंट एंड वेडनेसडे का जो एचटी का जॉब वो न्यूज़पेपर में नहीं आता. जॉब का एक अलग से आता है जॉब्स का. वो फुल रहता है 8 to 10 pages.
ओके, वी आर नॉट स्किल्ड पीपल, वी जस्ट वांट जॉब्स लाइक दैट. तो वहाँ पे कभी भी अर्बन प्लानिंग नहीं हो सकता. हेयर मनी इज नॉट सर्कुलेटेड वेल. Yeah. सो कल को मेरे पास 10,000 आ जाए, मैं 10,000 दबा के बैठ जाऊंगा. वी डोंट हैव गुड सिविक सेंस. एंड थर्ड, वी आर टू पॉपुलस टू बी कंट्रोल्ड. यहाँ पे तो बच्चे Population is our- माँ बाप ये बोल के बच्चा कराते हैं ना, तुम कर लो हम पाल लेंगे. Hmm. और जब हो जाता है तो हमारे लिए थोड़ी किया था. सही बात है. ठीक है ना, दोनों चीजें चलती हैं. दोनों चीजें चलती हैं. Hmm. तो जहाँ पे बच्चा पैदा करना इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अ फैमिली प्रेशर टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी Legacy. ऑफ द फैमिली. Hmm. तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते. इर्रिस्पेक्टिव मोदी आए, चाहे राहुल आए, चाहे केजरीवाल आए, चाहे भगवंत मान आए, एग्जाम्पल. Hmm. ठीक है, हम नहीं कर सकते. दिस थिंग कांट बी सॉर्टेड. ये होगा तो रूट लेवल से स्टार्ट होना चाहिए. यू हैव टू गो ट्रेन पीपल इन विलेजेस Train them for what? फॉर सिविक सेंस, Hmm. फॉर ओनर्स. Hmm. सो नाउ यू पर नो वो तो शहर में रह नहीं रहे हैं. वो वहां से उन्हीं के तो बच्चे आगे शहर में रह रहे हैं. हाँ. Everyone wants to earn money for themselves. They don't want to earn for society. Hmm. अब सोसाइटी में RW प्रेसिडेंट भी होता है तो वो क्या ही करता है. Yeah. He is a retired person. He wants to get busy, so he is doing it. But he is also not managing money, right? Yeah. आएगा पैसा आएगा, किसका कितना जा रहा है, किसका कितना जा रहा है, काम होने से मतलब है. अगर रोड खराब नहीं होगी, आज एक टेंडर निकलते हैं सरकार से. ओके, वो जो रोड है हमारे पीछे वाली, Hmm. वो हर साल फरवरी में ही रिपेयर क्यों होती है? सूरजकुंड मेले से सूरजकुंड पहले. मेला के लिए. हाँ. ठीक है, दिसंबर में एंड में रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, सूरजकुंड मेले तक चलेगी. फिर वो अगर वो नहीं होगी तो पैसा कहाँ से कमाएंगे लोग? Hmm. और वो अगर 5 साल चल गई तो फिर 4 साल पैसे कौन कमाएगा? बट इतना कितना खाना कमाना होता है, अरे क्योंकि ये तो यार. सब ऊपरी है ना. आपको आपकी सैलरी तो मिल ही रही है. कौन कॉन्ट्रैक्ट वाले को कौन दे रहा है सैलरी? सो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास 100 लोग हैं, एग्जांपल. वो 100 लोग इस साल काम कर रहे हैं ना. जब एक बार में सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है तो बाकी क्या करेंगे? दैट्स व्हाई वी विल ऑलवेज बी अ डेवलप्ड कंट्री टिल द टाइम आवर नेक्स्ट जनरेशन, योर किड, माय किड डजंट डू समथिंग अबाउट इट. और हम तो इसी रेस में कि बच्चा सही से पल जाए. हमारे अंदर अभी भी है, अगली वाली जनरेशन में भी नहीं होगा. बच्चा हो गया, ठीक है, 10-11 साल, नाउ लेट देम लिव देयर लाइफ. हमारे में है कि यार बच्चा 20 साल तक क्या करेगा, 21 तक क्या करेगा. हम तो सोच रहे हैं. सोच रहे हैं, वो नहीं सोचेंगे. एंड दैट्स व्हेन थिंग्स, बिकॉज दे विल थिंक व्हाट्स नेक्स्ट. वी आर सीइंग हु विल डू द नेक्स्ट. क्योंकि हमने करने की कोशिश भी करी, देखा भी, और उसके बाद बिजी है ना यार. हमारी Yeah. ये जो अपर मिडिल क्लास हम लोगों ने बनाया ना, हाँ, एग्जांपल, बिल्कुल वी गाइस हैव मेड अपर मिडिल क्लास. बिल्कुल. टिल द टाइम माइक्रोसॉफ्ट और एचपीज और ये इंटरनेशनल कंपनीज नहीं आई थी, एक मैनेजर के पास बाइक होती थी, ठीक है, हद से हद मारुति 800. सही. वो भी मैनेजर अगर 50 साल का है तो. हाँ. 2 जनरल BHK मैनेजर house. के पास एम्बेसडर होती थी, ये, और उसके बच्चों के पास कंटेसा वगैरह होती थी. और जो बिल्कुल ही जो ओनर है उसके पास मर्सिडीज होती थी, बच्चों के पास सीएलओ होती थी. दैट इज Correct. सीएलओ और फोर्ड वगैरह की चलती थी. Yeah. These guys have come in, they have made people realize कि एग्जीक्यूटिव लेवल पर्सन, बिग, जो 20,000 रुपए की तनख्वाह वाला बंदा है ना, दे कैन गेट अ कार. सिविल ठीक होना चाहिए, लोन हो गया. I'll tell you, my office, there are people who gets paid 20-25K. Okay, they are like telecallers, response agents होते हैं. They have iPhone 17. Do you think you can take a chance कि एक का iPhone 17 होना चाहिए? मैं तो खुद के लिए नहीं सोच सकती. So they are living the luxury. वो लग्जरी चेंज हो गया. कब धनतेरस पे चांदी की जगह से एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नया खरीदने लगे. Right. चांदी की चम्मच लेने की जगह लोहे की, iPhone स्टील की चम्मच, हाँ, चांदी की चम्मच हाँ, से हाँ. कब इट ऑल शिफ्टेड टू कि नया फोन आना चाहिए धनतेरस पे. और वो भी iPhone 17, वो भी not something of an affordable budget. अपने ऑफिस की स्टोरी सुना रहा हूँ. अभी थोड़े दिन पहले की बात है. सो देयर वाज अ गाय, मिलेनियल्स, नॉट जेन ज़ी, मिलेनियल्स. मिलेनियल 20 साल का बंदा होगा, कॉलेज के सेकंड ईयर में है तो. एंड ही वाज वर्किंग. अब टेलीकॉलिंग जॉब ही ऐसा, बट वी डोंट हैव सेल्स टारगेट, बट टेलीकॉल करके लोगों को इनवाइट करना है. यू हैव टू कॉल देम फॉर एन इवेंट एटसेट्रा, गेट देयर रजिस्ट्रेशन. अब नाउ इट्स अ प्रेशर सिचुएशन हो ही जाती है, चाहे सेल्स हो या प्रेशर सिचुएशन बन जाती है. सो दिस गाय वर्कड फॉर 10-12 days एंड ही सेड कि आई एम लीविंग. रीजन कहता जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना, आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू माई गर्लफ्रेंड. मेरा रिलेशनशिप टूट गया है.
बहुत सुनने को मिलता है ये। मैंने कहा रिलेशनशिप टूट गया है, यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर गर्लफ्रेंड। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ अ टाइम यू एंड योर गर्लफ्रेंड प्लान, साथ तो नहीं रहते होगे। कहता वॉट एवर इट इज, दिन में 2-3 घंटे तो बात करनी होती है ना, आई एम नॉट एबल टू गिव दैट टाइम टू हर, एंड ही लेफ्ट द जॉब। एंड देन आई वाज लाइक कि जब हम इसकी एज में थे ना, हम ये जिंदगी अगर एक्स्ट्रा काम कर लिया तो ओवर टाइम देती है क्या ये कंपनी, बिल्कुल, ठीक है। एंड देन सी व्हाट द शिफ्ट, ठीक है। सो इसकी जनरेशन अगले वाली होगी ना, उन्हें सब चीजें ठीक चाहिए होंगी, दे विल चेंज, नॉट हम तो इसी झगड़े में हैं, हम तो इसी भेड़चाल में ही लगे हुए हैं। वी आवर जनरेशन इज ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू, बिकॉज हमारा फियर ये है कि हम अपनी अगले वाले के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। Trying to create value for us and others. For us and others, and ideally for our kids. Yeah, वही मतलब it's not just me. We are but trying to others. create value. Yeah. उस वैल्यू के हमारे बच्चों को वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। ठीक है, मेरी बच्ची रोज कहती थी क्ले चाहिए। मैंने कहा बेटा ऐसे कैसे? कहते यू वर्क इन ऑफिस राइट। अब उसे समझाना पड़ता है कि 10 दिन में एक बार ही क्ले आएगी, ठीक है। उन्हें वैल्यू नहीं, वो उसी वैल्यू चेन सिस्टम, बिकॉज हमें तो क्ले भी नहीं मिलती थी खेलने के लिए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट है, क्ले क्या होती थी? क्ले सच में चिकनी मिट्टी। हम गांव जाते थे ना, गांव में तालाब होता है, तालाब के किनारे पे चिकनी मिट्टी होती थी एक्चुअल वाली, ठीक है। वो कभी गांव जा रहे हैं तो मिल गई खेलने के लिए कि उससे हम कुछ बना रहे हैं, कुछ चिपका रहे हैं, बना रहे हैं, वी आर मेकिंग कुछ ना कुछ। ड्राइंग बुक तब महीने में 1.5 महीने में एक बार आ जाए, यहाँ बच्चे को हर चौथे दिन ड्राइंग बुक चाहिए, कुछ है नहीं, आर्ट कर लो, कलर कर लो। सो दिस इज, वी आर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर देम। नाउ वंस दे विल गेट दैट क्रिएटेड वैल्यू ना, दे विल चेंज द सिस्टम। मुझे आपके बारे में मोस्टली आपकी फर्वेंट की प्रोफाइल से थोड़ा बहुत पता है, यू नो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। बट व्हाट आई जस्ट डोंट नो इज हैरी। आई डोंट नो हरिंदर राणा द पर्सन। अगर आपका फर्वेंट का चोला हटा दें तो आप कौन है? Then I am Harry. So अगर फर्वेंट का चोला हटा दो तो you'll find me a stressed person. A stressed person who's always trying to be happy, cracking jokes. The kind of serious conversation we have this before ना, इतनी serious conversations कभी होती नहीं है. It is just that we are trying to get to know each other or we are getting comfortable for this. But अगर मेरा 4 साल पुराने जाके इंस्टा हैंडल देखोगे आप, I used to make those funny reels. ठीक है, You making funny reels? अच्छा, मैं वो प्लेस नहीं कर पा रही हूँ। Okay. Funny reels with my sister, and that's what I am. I try cracking jokes. I want to be funny. Actually funny. Okay, I want to crack one-liners. पता नहीं, to handle your stress, or you in general, like to as be a funny? general stress is a part of life. You don't have to handle it. If you work towards handling your stress, you get more stressed. True. So stress will always be there. You just don't have to handle it. Yeah. You know, stress को भी जगह दे दो यार. स्ट्रेस को भी जगह दे दो. Because stress है तो you are working. True. My CEO मुकुल थोड़े दिन पहले ही said to me, जितने लोन लेने ले लो ना यार, सर पे टेंशन रहेगी तो ज्यादा कमाएंगे, ठीक है। तो कमिंग फ्रॉम द स्ट्रेस को रहने दो, स्ट्रेस इज देयर, स्ट्रेस की एक जगह, हमें स्ट्रेस नहीं है, हमारे पेरेंट्स को भी होता था, रिस्पेक्टिव, वो चाहे 8 घंटे की नौकरी करते थे, स्ट्रेस सबको है, तो स्ट्रेस को उसकी जगह दे दो। स्ट्रेस हैज अ वैल्यू इन आवर लाइफ एंड स्ट्रेस टीचेस लॉट ऑफ थिंग्स. Stress is the biggest teacher. But what has your childhood been like? So the story is like this. We belong from that line of Maharana Pratap. So my father used to work as a building material contractor, supplier. हफ्ते में एक दिन चिकन बन गया तो that was a luxury. Correct. I'm a college dropout, by the way, because I wanted to do acting. Went to Mumbai. 5-6 महीने स्ट्रगल किया, पापा ने कुछ पैसे दिए थे, खर्च वर्च हो गए. And then there is a place called Diamond Garden, if you have ever been to. उसमें ना 4-5 दिन न्यूज़पेपर में सोना पड़ा, because there was no place. पैसे खर्च हो गए, लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया. So the life was 1 रूम में you used to go to washroom. सुबह मॉर्निंग में फ्रेशन अप, वॉशरूम हुआ, एंड देन 4 रुपए का तो वड़ा पाव, 2.5-3 रुपए का वड़ा पाव आता था. भजिया पाव, भजिया पाव इज माई फेवरेट. सो एक भजिया पाव, एक कटिंग चाय 1 रुपए, 4 रुपए तब लगे. लंच में एक भजिया पाव, एक कटिंग चाय 4 रुपए तब लगे, और डिनर में तो 20 रुपए दिन के हिसाब से खर्चा होता था. तो रियलाइज इट 5-6 दिन 100, 150, 200 रुपए जब तक थे तब तक किया. फिर उसके बाद घर पे फोन कर दिया, घर वालों के पास
पैसे नहीं थे तो आई आस्क्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन कि 300 रुपये डाल दे मेरे पास. लग्जरी फुल थी, सिटी बैंक का अकाउंट था उस टाइम पे, सिटी बैंक का डेबिट कार्ड होता था उस टाइम पे. ठीक है, तो 300 रुपये डाल दे भाई, कैसी दिल्ली आ जाऊँ. एंड देन आई केम बैक टू दिल्ली एंड देन हाउ द नॉर्मल 2-4 दिन इधर घर पे रखे. घर वालों को तो आज तक नहीं पता कि क्या हुआ था उधर. एंड देन केम बैक टू दिल्ली एंड देन स्टार्टेड वर्किंग जॉब्स एटसेट्रा एटसेट्रा. नॉर्मल वाला. माय फादर सेड कि 2 महीने होते थे. तो इवेंट्स चूज किया था कि एक्सीडेंट हुआ? वन फाइन डे माय फादर सेड इतना कर ही रहे तो अपने लिए कुछ कर लो. Events is a pretty much what do you say, it's a common sense thing, but it requires a lot of hard work. Yeah. Okay, so तब भी and तब मेरे पापा हर संडे को कोई लड़की वाला देखने आता था. And it was very, I have seen it actually, you hear it in reels now, you see it in reels कि इवेंट मैनेजर को बैंड बाजा वाला बोलते हैं, करते क्या हो, खाना लगाते हो, क्या करते हो. I have seen it in real world, I have faced it in real world, because it used to be very difficult to explain people कि what I do. I am into event management, but what, क्या करते हो, करते क्या हो, काम क्या है, काम क्या करते हो. तब उनको ये बोलते थे कि यार डीजे पार्टी हो गई, कि आपको अगर कोई पार्टी करनी है, और तब लोगों के लिए पार्टी मीन शादी ओनली. हाँ. शादी और फंक्शन. अच्छा, एक ही 2 चीजें होती थी शादी, बैंड बाजा, ये सब कर सकते हो. आई स्टिल गेट कॉल्स फ्रॉम ऑल दीस पीपल कि एक बैंड बाजा, एक बैंड कराना है, कर सकता है, नहीं कर सकता है. दैट्स व्हाट. सो अचीव्ड अ लेवल देयर एंड देन आई स्टार्टेड ऑन दिस ओन Fervent. एंड नाउ Fervent भी स्टार्ट किया था, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी. आई वाज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोजेक्ट. Fervent didn't happen overnight. Right. I was supposed to be a part of bigger project. I left because I had to move. एक बार दिमाग हट गया तो हट गया. You don't put yourself there कि हो गया भाई, खत्म. And then छोड़ा. I went there. I went to Mumbai, discussed that project. It didn't work out. ठीक है. एंड देन आई केम बैक टू दिल्ली एंड सेड लेट्स स्टार्ट Fervent नाउ. Fervent पहले स्टार्ट कर बिकॉज आई हैड टू डू एन इवेंट. 2 महीने खाली घर पे क्या बैठोगे. सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज देयर, हिज नेम इज राजीव गुप्ता. ही गिव मी माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. ही लेटर ही वर्कड विद Fervent आल्सो. सो ही गिव माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, दैट वाज अ स्पोर्ट्स इवेंट वी डिड. एंड देन वो एक ऐसी कंपनी खोल लेते ना, Fervent नाम से खोल ली थी तब, कि यार चल खोल ली, बिकॉज पर्सनल नाम पे तो बिलिंग होगी नहीं. एक नाम तो चाहिए. खोला, बिलिंग किया, एंड देन वेंट देयर एंड देन सेड कि यार यहाँ तो बात नहीं बनेगी. एंड देन केम बैक टू दिल्ली, स्टार्टेड Fervent. सो ऑफिशियली Fervent was started on 27 December 2010. 18 मई को रजिस्ट्रेशन सब कंप्लीट हुआ. एंड दैट्स इट. स्टार्ट किया एंड देन 6 महीने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए. फिर 6 आई वाज टेलिंग अबाउट ना गिफ्ट वाली चीज. आई वर्क फॉर दोज ब्रांड्स, उन्होंने बिजनेस दिया ये वो, तो 2-3 महीने अच्छा लगता है. यू हैव डन फ्यू प्रोजेक्ट्स एंड देन सडनली देयर वाज अ लल. शट डाउन कर देते हैं. 4 महीने कुछ नहीं है. किसको लाओगे. एंड यू नीड टू, बिकॉज देयर वाज अ लिस्ट ऑफ पीपल व्हेन आई स्टार्टेड. ब्रांड्स और potential people. brands तो ठीक है, secondary. I haven't reached out to my old brands as of now. Okay. जिनके साथ मैं तब काम करता था. So list किसकी? People who will join me. Oh, team. ठीक है. उनमें से एक नहीं आया. ठीक है. Then I had to reach out to a person called Gurpreet Gyari, if you know. He's the, ठीक है. So he came and he said कब से आना बता दियो, आ जाएंगे. At half of his salary, etc. He came and then it all started. 5-6 महीने we did some good work starting 2-3 months. Then there was nothing. We were like कि यार चल हो गया, शटर डाउन करते हैं, नहीं हो सकता है. And that's when in time ना my father said कि 2 महीने होते थे. You are 30 right now. Okay? So when you reach 40, you should not have that regret कि तब कर सकता था मैं कुछ. ठीक है. Because that's when I said ना, मैंने कहा छोड़ा था, तो there was a lot of discussion which goes when you leave a job. Yeah. Since you were the also learning member of the family, and then you were like क्या करें. तो उस टाइम पे my family supported me a lot कि 6 महीने नहीं भी देगा तो चलेगा, कर लेंगे manage. My first thing which I tell to people ना mostly is कि अगर if you have to get into something of your own, just take your family members. If you're married, talk to your better halves and everything. Manage your expenses for next 1 year at least. Because अगर पैसे का प्रेशर रहेगा ना सर पे तो नहीं कर पाओगे. पेशेंस के लेसन्स कहाँ से सीखे? My lessons are based on my life stories only. Sure. जब वो पेशेंस ही है कि मेहनत करते रहो, 2 + 2 4 ही नहीं होगा. वो 2 + कभी गिव अप हुआ है? हाँ बहुत बार होता है. नॉर्मल है ना वो तो. It's very human to give up. After every 5 days you give up. हाँ.
It's very human. Till if you are not busy, you're giving up. When you work, कुछ खास डिग्री है नहीं, you still have to make something. You know, घर को लाइफ देनी है, ये देना वो देना. You work, keep yourself busy in work. तो ये सब thought process ही नहीं आते. कि क्या जा रहा है और क्या यार घर में खाने को पैसे नहीं है, कोई महीने भर काम करने का आपको 20-25 हज़ार रुपए दे रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट 2005. तो अब उसमें मैं ये सोचूं कि मैं अनहैप्पी भी नहीं हूँ और पेशेंस भी नहीं हूँ. काम करते रहो ना भाई. घर चल रहा है मेरा, घर चल रहा है, वो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी है. तो प्रायोरिटी मेरी ये नहीं कि वेदर आई एम हैप्पी एट जॉब और नॉट, बट व्हाट आई डिड वाज आई मेड इट माय पैशन. पैशन बना सकते हो आप किसी भी चीज को अपना. यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट. दैट्स द चेंज. यू नो वी कांट चेंज, वी कैन चेंज बाय मेकिंग समथिंग एज आवर पैशन. घर चल रहा है मेरा तो कहाँ है, बट घर चल रहा है 5-6-7 साल निकल ही गए ये सोचते सोचते कि घर चल रहा है यार. कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिला, कुछ और सोचने का टाइम नहीं मिला. संडे मिलता था, पापा बिठा देते थे, चलो भाई लड़की वाले देखने आने वाले. एवरी संडे फॉर लाइक 6-7 years. Really, yes. 6-7 So much of rejection. Seriously. And because आप इवेंट बिजनेस में हैं. नहीं, किसी को नहीं पसंद आता जब लड़के वाले देखने आते हैं. बहुत सारे रीजंस होते हैं ना भाई. ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं. ठीक है, बट इवेंट बिजनेस तो छोड़ दो कि क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. सो मच ऑफ रिजेक्शन. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, योर वर्थ टू पीपल. अंडरस्टैंडिंग सिटिंग ऑन टेबल एंड गेटिंग रिजेक्टेड एवरी वीक. That's huge. And for a guy, लड़कियों की तो सुनते हैं. हमारे यहाँ उल्टा होता है भाई. पहले लड़की वाले लड़का पसंद करते हैं, देन लड़के वाले लड़की देखते हैं. इसी चीजों में राजपूतों को मैं मानता हूँ, ये अच्छा करते थे वो लोग. तो ऐसा नहीं कि लड़के वाले चले गए लड़की देखने, नहीं. हमारे पहले लड़की वाला लड़का पसंद करेगा, फिर लड़का लड़की को देखने जाएगा अगर लड़की वाले ने ओके बोला है तो. अच्छा, सो लड़के की पसंद सेकंड स्टेप है. लड़की की पसंद सेकंड स्टेप है. बाकी और हम चीजों में सब पिछड़ हो इन टर्म्स ऑफ यू नो ऑर्थोडॉक्स हो. बट यहाँ पे राजपूत सर वेरी गुड. लेवल प्ले फील्ड है. लेवल प्ले फील्ड नहीं है. रिजेक्शन अथॉरिटी लड़की के पास है कि पहले रिजेक्ट, बाद में लड़का करे ना करे वो एक अलग चीज. लड़की तो ना करती है, वो तो उसके पेरेंट्स. तो लड़की को भी तो दिखाते हैं, इसको देख कर आए हैं. अब कहाँ वो बाल विवाह वाले थोड़े दिन रह गए कि बेटा कल उठियो तेरे को दुल्हन बनाएंगे. हाँ, सो द प्रायोरिटी वाज तो टेबल पे खाना लाओ, टेबल पे खाना लाओ, काम करो, मेहनत करो. अगर मेरे को 25,000 रुपये महीना मिल रहा है, मैं एक्स्ट्रा करूंगा तो 3,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा. घर की चीजें इधर है उधर है. प्रायोरिटी वाज दैट. उसी में टाइम निकल गया, पता ही लगा. एंड देन आफ्टर 7 years आई रियलाइज, देख के पीछे मैंने कहा यार अगर मैं कुछ और सोचता तो ये सब चीजें तो होती नहीं. इफ आई वुड हैव बीन विद अदर पीपल, ऐसा नहीं अदर लोग गलत हैं, बट यू नो देयर आर टू मच ऑफ थिंग, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग. मेरे को समझना तो व्हाट इज पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, क्या होती है. इफ आई एम वर्किंग, माय वर्क इज गेटिंग नोटिस्ड. नहीं, पॉलिटिक्स होती है जो पीछे से कोई चुगली लगा देता है. तो क्या फायदा पड़ता है, तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा काम बोल रहा है ना. बट लोग चुगली लगा के आपके काम को छुपा लेते हैं. भाई मुझे सोनिया से एक काम चाहिए. अब सोनिया के पीछे 10 लोगों ने मुझसे बुराई कर दी सोनिया ने, बट व्हेन सोनिया ने काम दिखाया, शी डिलीवर्ड. तो डू यू थिंक मेरे को वो मैटर करेगी चुगली ये? मैं उनके साथ बैठता कि बुराई ये. आई वाज सो फिक्सेटेड विद माय वर्क. माय बॉसेस प्रतीक, दीपक मदान, दे वर ऑल वेरी हैप्पी. ठीक है, देन आई रियलाइज्ड कि पेशेंस है भाई ये तो. एंड पेशेंस आल्सो पेड इन टर्म्स व्हेन द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट. गैरी ने ज्वाइन किया, देन राजीव जी केम इन, माय फाइनेंस गाय. एंड देन 2013 का एक टाइम था, वी हैड नो मनी टू पे सैलरीज. तब हम 8-10 लोगों की टीम होता था. एंड पैसा नहीं था कि वी वर इन लॉसेस, बट पैसा अटक गया मोटा कहीं पे. एंड देन द क्लाइंट हैड अ सिस्टम ऑफ डूइंग पे आउट्स इन 90 days एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, सो पैसा अटक गया. फॉर 5 months वी हैड नो मनी टू पे सैलरीज. 1500-1600 रुपए थे करंट अकाउंट में जिसपे चला रहे थे. द इंटेंट वाज जो भी काम आ रहा था करो. यूज टू स्पीक टू वेंडर्स कि ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा करेंगे. ठीक है, those 6 months when you are hanging in there and you are asking your team to hang in there and they are showing that kind of trust on you कि बॉस मिलेगा. 2013 दिवाली पे 6 महीने की सैलरी दे रहे थे हम. ठीक है, so that's what I was patient. So that's, you know, it's all personal story. Just hang in there and keep doing what you are doing. Yeah. Upper middle class हम लोगों ने बनाया ना example. बिल्कुल. We guys have made upper middle class. Till the time Microsofts और HPs और ये international companies नहीं आई थी, एक मैनेजर के पास बाइक होती थी. ठीक है, हद से हद मारुति 800. सही. वो भी मैनेजर अगर 50 साल का है तो. जनरल मैनेजर के पास एम्बेसडर होती थी और उसके बच्चों के पास कंटेसा वगैरह होती थी. और जो बिल्कुल ही जो ओनर है
उसके पास मर्सिडीज होती थी, बच्चों के पास सीएलओ होती थी. दैट इज Correct. सीएलओ और फोर्ड वगैरह की चलती थी. Yeah. These guys have come in, they have made people realize कि एग्जीक्यूटिव लेवल पर्सन, बिग जो 20,000 रुपए की तनख्वाह वाला बंदा है ना, दे कैन गेट अ कार. सिविल ठीक होना चाहिए, लोन हो गया. यार यू सी, I'll tell you, my office, there are people who gets paid 20-25K. Okay, they are like, they have iPhone 17. Do you think you can take a chance कि एक का iPhone 17 होना चाहिए? मैं तो खुद के लिए नहीं सोच सकती. So they are living the luxury. वो लग्जरी चेंज हो गया. कब धनतेरस पे चांदी की जगह से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नया खरीदने लगे. Right. चांदी की चम्मच लेने की जगह लोहे की, iPhone स्टील की 17. चम्मच, हाँ, चांदी की चम्मच हाँ, से हाँ. कब इट ऑल शिफ्टेड टू कि नया फोन आना चाहिए धनतेरस पे. और वो भी iPhone 17, वो भी People. not something of an affordable budget. So before we start, one last thing. I'll tell you. So एक अपने ऑफिस की स्टोरी सुना रहा हूँ. अभी थोड़े दिन पहले की बात है. So there was a guy. These millennials, not Gen Z, millennials. Millennial 20 साल का बंदा होगा, कॉलेज के सेकंड ईयर में है. तो एंड ही वाज वर्किंग. अब टेलीकॉलिंग जॉब ही ऐसा, बट वी डोंट हैव सेल्स टारगेट, बट टेलीकॉल करके लोगों को इनवाइट करना है. यू हैव टू कॉल देम फॉर एन इवेंट एटसेट्रा, गेट देयर रजिस्ट्रेशन. अब नाउ इट्स अ प्रेशर सिचुएशन हो ही जाती है, चाहे सेल्स हो या प्रेशर सिचुएशन बन जाती है. सो दिस गाय वर्कड फॉर 10-12 days एंड ही सेड कि आई एम लीविंग. रीजन कहता जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना, आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू माई गर्लफ्रेंड. मेरा रिलेशनशिप टूट गया है. बहुत सुनने को मिलता है ये. मैंने कहा रिलेशनशिप टूट गया है, यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर गर्लफ्रेंड. मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ अ टाइम. बट टेल मी, यंग लोग बदल गए हैं क्या? यस. या किस तरह से? 9 to 5 is standard. 9 to 6 हो सकता है. People have changed because there are no buses now for them to go to office. There's always an Uber. There are no walks कि बस स्टेशन ने बाहर उतार दिया है and then go to office. इस गली में ऑफिस है मेरा. Example. If I would have come by bus, बाहर बस स्टेशन पे उतरता मैं, रोड पे रुक जाते. From there I would have come walking to this place. वो सब नहीं ना, आपको बाहर आके गाड़ी लगाई सीधे इधर, और उबर भी आती तो वहीं लगाती ना, वहीं लगाती and then it's a small walk. So people have lost that and they are not seeing this. Young people, they might be smart, they might be intelligent, they might be tech savvy, but not everything is tech savvy na. Personalized experience, personalized things, experience is the first thing of an experience is you need to be human. It needs to be humane. It needs to be personalized. It needs to be with smile. वो सब चीजें खत्म हो रही हैं आज के डेट में. People have changed because for young people, events is that jing bang what you see. एक लाइट ऐसे जा रही है, स्क्रीन पे बड़ा सा चल रहा है, कुछ म्यूजिक हो रहा है, everything. But the effort that goes behind them ना is literally too much. 2-2, 3-3 रातें जब नहीं सोते ना लोग, and when they go to sleep, और उठते हैं 15 घंटे बाद, and then they realize what have I done, what have I achieved with this. वो आज के डेट में नहीं है. They will nothing against young people though. Yeah. Okay. Just the way it is. Just the way it is, and that's how the world is changing. तो आप बोल रहे हो कि हाँ बस पे नहीं जाते हैं, सही बात है. मेहनत नहीं हो रही है उस तरह की, है ना. तो लाइफ ही इजी हो गई है, कंफर्टेबल हो गई है, अफोर्डेबल भी हो ही गई है ठीक ठाक से. तो वो हो गई है, तो उससे लोग, उसकी वजह से लोग 9 to 5 पे 9 to 5, 9 to 6, yes, 9 to 5, 9 to 6. Nobody wants to work. की बात आ Ask जाती है. anyone of our age or people who are working in corporate life. Clients को हम सोचते हैं 9 to 5, they are not working 9 to 5. बिल्कुल. They never work 9 to 5. 24 घंटे काम कर रहे होते हैं. It's a work life thing. 24 घंटे ही आप काम कर रहे हो ideally. अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, if I have to attend a Singapore based call, तो मैं यहाँ पे 10 बजे, सिंगापुर में 2 बज चुके हैं ना. ठीक है. If I have to same time attend a call out of a US based client, उसके यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, तो मेरे यहाँ रात के जब 2 बजेंगे, उसके यहाँ सुबह के 8 बजेंगे, तो उस टाइम पे कॉल होगा, अटेंड होगा, कॉल अटेंड होगा ना. तो ये क्या यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं? नहीं करना चाहते, मना कर देते हैं. यार एवरीथिंग कम्स विद मनी फॉर यंगस्टर्स. एवरीथिंग इज करेंगे, बट यू नो व्हेन वी एंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री, बेसिक सैलरी वाज व्हाट 5,000 रुपीस. 2003-4 5,000 रुपीस मिलते थे. इंसेंटिव ज्यादा होते थे आइडियली. ठीक है, पर वो भी कोई इतना नहीं होता था. बट आज की डेट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5,000 रुपीस व्हिच वाज इन 2010 टुडे? 30,000. Do you think आज की डेट में you'll give a fresher 30,000 rupees?
नहीं, क्योंकि है तो फ्रेशर ही ना, है तो फ्रेशर ही ना. वही. आज की डेट में इफ यू गो फॉर stipends are of the range of 30,000 rupees, and stipends are just for 2 months. Yeah. 30,000 rupees per month. We get meals, etc. You know, come internship, training, etc. हम internship free में मिलती थी. The certificate की value थी. आज की डेट में everything is with money. I remember I interviewed someone. This guy was here from UK, and then he wanted to do an internship, and post internship he was looking for a job. So चलो किसी reference आया, hire him. What he wanted was 13,000 pounds a year for the first year. ठीक है. 1,000 pounds, 800 pounds as internship. So things are changing. हमें उस time पे people will get offended when they'll see this, but yes, there is nothing to be offended about. That's how we see it as. That's how we see it, and that's how we see it as. 10,000 रुपए में 10-12,000 रुपए के लोग नहीं मिलता आजकल. हाँ. Okay, and 30,000 रुपए हम देंगे नहीं. I'm really wanting to brainstorm with you of what's happening and where. Now, we don't get people who are good, hardworking, bring a mind, bring that energy. We are getting people who are smart, but smartness only works with us when you back it up with hard work. Yes, और hard work करना नहीं है. Hard work नहीं करना है ना. और hard work इसलिए नहीं करना है क्योंकि उनकी पूरी लाइफ ही में कोई इतना कुछ hard है ही नहीं. कंफर्ट बेसिक सब कुछ सबका हो ही रहा है, ठीक ठाक सही है. I have still find these kind of people. I know, so yeah, I'll not name them. I don't know whether this guy will see it or not. Sure. Just a 23-24-year-old person in my office. जो मैंने सैलरी बोला ना आपको, इतना ही दे रहे हैं उसको. ठीक है. His father has to go for a heart transplant. खर्चा इस 4 करोड़. तो हमारे लिए मुश्किल हो जाए. Whatever. खर्चे को थोड़ा सा बीप कर देना. ठीक है. खर्चा इस 4 करोड़. He's trying selling everything and he's still managing to show up in time in office, delivering projects. Wow. ठीक है. Trying selling his everything. That's the kind of people we value. Yeah. And that's the kind of people who make names for themselves. You know, personal life. I told you that case, na? So someone said ki I'm not able to give time to my girlfriend. Yeah. That's why I want to leave. For them, money is something. So we are married late. Okay, we are like 40. I am 45. Yeah, same here. Okay. If you would have gotten married on time, which was like 22, 23, 25. Yeah. हमारे बच्चे भी 20 साल के होते हैं. ठीक है. If you would have planned it then, 20 साल के होते. And 20 साल के होते, तो they would have lived a different life, right? बिल्कुल. हम भी नहीं चाहते उनको ऐसा करने देने के लिए. हाँ. Why to work for 12-15 hours a day? Yeah. So one is that peer family pressure कि नहीं करना इतना काम. हम हैं अभी. Try find something new. Try do something. ठीक है. काम वही करेगा जिसको जरूरत है. Internship certificate के लिए बहुत लोग आते हैं. For few it becomes passion. Yeah. And that's when I said people who wants to prove themselves that they don't have a huge degree, a good degree, they don't have a good background, but they see people making कि यार ये बंदा क्या था 10 साल पहले, and now what is he doing? That's what event managers are made up of. वो वैसे वाले जो लोग होते हैं ना, they are there. तो hunger तो basic है. Hunger, desire to prove to the world, yeah, and hard work. ठीक है. टाइम नहीं देखना. If you start seeing time in events, you can't work. किसी भी चीज में, नहीं किसी भी मैं इवेंट स्पेसिफिक हूँ. किसी भी चीज में you know people might work, people might not work. You know there are corporate people. EI से बहुत ज्यादा life sorted है, बहुत कुछ sorted है. But hunger, hard work, patience, everything. Till the time you don't you are there. ये सब चीजें नहीं है. You will not be successful. Irrespective, you are from a good postgraduate college. Yeah. If you are not passionate, so passionate, hunger, hard work, honesty, most important, honesty, and then patience. क्या ये build करी जा सकती है किसी में? नहीं, you can't. There are है things. तो है, नहीं है तो नहीं है. है तो है, नहीं है तो नहीं है यार. मतलब hard work build किया जा सकता है. When you see other people doing work, opportunity दो, guide दो, हाँ. and they are putting in their 100% effort. Yeah, हो सकता है. It can be there. Patience can be taught by giving some examples कि वो देखो उस बंदे ने इतना मेहनत की इतने टाइम में, बट नहीं हो पाता है. Yeah. And then
Honesty तो is imbibed, you know. Honesty नहीं सिखा सकते. Honesty नहीं सिखा सकते, and you need to be honest Yeah. in this industry. Hmm. ठीक है, हार्ड वर्क वगैरह सब कुछ दिखता है, बट if you are honest to your clients also ना, that's been our biggest factor. We are very honest to our clients. Transparent. Solution centric approach है, transparent हो, गलती है तो गलती मानो, not give excuse. ना यार सब स्मार्ट है, सबको लगता है कि पता नहीं चल रहा, पता है, सबको सबको सब कुछ पता है, ठीक है. So everyone knows everything. If it's a mistake, admit it. Try find a solution. If it's not a mistake, don't admit it. Stand to your words. Take decisions. Taking decision teaches you a lot, you know, because in an organization point of view, in an organization like ours or any service agency, the way you take decision and you stand by them teaches you a lot of things. Your people see, the top guys see, this guy took a decision, it was wrong, so he'll never take it again. Yeah. Okay? It has backfired on him, but he's standing by it. He took the decision and he's standing by it. Ownership ले रहा है. Ownership है. Yeah. बस ownership also is important, but you can't, ownership भी नहीं सिखाई जा सकती. जब हम छोटे थे तो सब कुछ बहुत बेसिक था, you know, there was सब कुछ था लेकिन इनफ तो नहीं था, you know, तो गैप्स रहते थे. तो बहुत मेहनत करी और आज ओवरऑल एज अ सोसाइटी ने काफ़ी कंफर्ट इकट्ठे कर लिए. अब लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि जो छोटे लोग हैं, यंगर लोग हैं, वो उस चीज़ को उन हंगर ही खत्म हो जा रहा है, मेहनत ही खत्म हो जा रही है, उनको जो चीज़ें वो प्लेट पे सर्व होके मिल रही है. डू यू एग्री और यू डोंट? We are not able to give them a correct platform of evolving, cause ये जो चेंज आया ना सडन, मैंने बताया ना, स्कूटर से कार से फिर लग्जरी कार के बीच की दुनिया बहुत जल्दी हो गई हमारे लिए. बहुत जल्दी बढ़ी है. बट हम शायद अपनी लाइफ में बिजी हैं. और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम शायद अपनी लाइफ में बिजी हैं. हमारी तो लड़ाई बच्चों के साथ इस चीज पे, इनका स्क्रीन टाइम कम करो. बिल्कुल. बट डू वी हैव टाइम टू टेक देम टू पार्क, टू गो प्ले विद देम, रन विद देम? So one of my colleagues, she's from Bombay, she was talking to me and she said her child wants to become a weapon engineer. Do you know there is something called weapon engineering also? तो हमें नहीं पता. नहीं, मेरे को तो नहीं पता. So it is just that we have been too busy in getting all the getting our all necessities and turning them to be easily accessible for our kids, that हम वो सब चीजें छोड़ रहे हैं. हैरी और मैं आई थिंक सेम अराउंड द सेम एज के हैं, तो इट्स डेफिनेट कि हमने अपनी लाइफ में अभी तक यही काम किया है कि मेहनत करके कुछ जोड़ रहे हैं जिससे कि आगे जाने वाली जनरेशन थोड़ा सी स्टेबल हो और अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, टीम्स को हम जितना बेस्ट दे सकते हैं वो दें. सो हमारी जनरेशन तो इसी में जा रही है एंड होप इज़ कि आगे वाली जनरेशन विल फील मोर स्टेबल. बट ये ऐसा कोई स्विच नहीं है ना कि ऑन ऑफ कर दिया, हमारे बाद वो स्विच ऑन हो जाएगा और आगे वाला चल जाएगा. इसलिए हम कैसे चीज़ें समझते हैं और हम अपनी किस तरह की हम बातचीत करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास वालों से, अपने बच्चों से, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा. तो इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए आप ज़रूर सुनिएगा हमारा पॉडकास्ट विद डॉक्टर अवधेश सिंह, जिन्होंने खास क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करी है. वो एक फाउंडेशन भी रन करते हैं, ऑथर हैं, तो बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग कि क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग, क्या लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग सेम है या नहीं. So do listen to that. And then you must listen to actor Adil Hussain. Of course, the one and only Adil Hussain. वो जाने जाते हैं बहुत ही निश रोल्स के लिए, बहुत ही सेलेक्टिव फिल्मों में काम करते हैं वो, और जिस भी फिल्म में काम करते हैं हम उनको बहुत सराहते हैं. लेकिन इसके पीछे खाली उनकी एक्टिंग स्किल नहीं है, उनकी पूरी सोच है, उनकी ज़िंदगी की, लाइफ की ऑब्जर्वेशन है. तो उनके साथ ये डिस्कशन हुआ कि एक आर्टिस्ट होता क्या है, यानी कि आप किस तरह के इंसान जब बन जाते हो तो वो आपकी आर्ट में दिखने लगता है. और ये इसलिए सुनिएगा क्योंकि हैरी ने भी जैसे बोला कि एंटरप्रेन्योर होना एक आर्टिस्ट की तरह से है कि आप एक विजन बनाते हो और उसके पीछे चल जाते हो. तो ये बनता कैसे है, आप विजन को होल्ड कैसे करते हो, आपको अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती हैं, इस कनेक्शन में ये पक्का सुनिएगा. और
एक्टर अमित बहल का पॉडकास्ट भी सुनिएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने शेयर किया है कि किस तरह से उनकी ऑलमोस्ट आधी लाइफ निकल गई इस बात को प्रूव करते करते अपनी फैमिली को कि वो एक एक्टर बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जबकि पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट स्टेबल लाइन में जाएं। लेकिन दिल मांगे मोर, उनको बनना था एक्टर और वो बन गए और वाह क्या एक्टर बने। सो ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि जब हम ये मान लेंगे कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन ही रहता है, तो आई एम श्योर कि आपको ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ करना पड़ेगा आपको, मुझको, हम सबको कुछ करना पड़ेगा कि हम इससे बेहतर कर पाएं। उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग समझते हैं, उसके लिए समझते हैं व्हाट इट इज़ टू बी लाइक एन आर्टिस्ट, और ये समझते हैं कि रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करें, बिकॉज रिजेक्शंस को बिना हैंडल करे हुए वी आर नॉट गोइंग टू गेट देयर. So I hope this all connects and you're enjoying all our shows. Keep floating with the fish.